The last video on coordination compounds included a little bit information regarding the coordination compounds. That is the introductory part of the coordination compound. And I explained the term ligands. Along with that, within the ligands, we discussed chelate, chelate rings, chelate effect, various kinds of ligands, their denticity, monodentate, didentate, terdentate, etc. And last thing I discussed was the ambidentate ligands having two coordinating sites within the same molecule. So that I discussed in the previous video. If you want to go through that video, I'll share the link in the description box and I'll continue further in this video. After ligands, now other important terms that we should know in coordination compounds include coordination sphere or coordination entity, coordination number, oxidation states, and then there are some other terms. So that I'll cover in this video. Along with that, I will give you the rules that we follow while we write the formula of a coordination compound. So as in the previous video, if you have watched or in journal, while you go through the coordination compound, the chapter coordination compound, you must have seen there is a specific way of writing the formula of a coordination compound. We use a square bracket, the use of anions, cations, that is done in a specific way, written in a specific way. So all those rules will be discussed in this video. But before that, let us cover up the remaining terms that we should know in the coordination compounds. So those include the next term, the first term coordination, ligand I covered. Now the second term that I am taking up here is coordination number. Again, a very important term, coordination number. Okay, see, coordination number, I'll give you with an example. Now this is an example of a coordination compound. ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में, नॉट इन आईयूपीएसी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं. करेक्ट. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स. सी, a coordination compound might contain a didentate, terdentate, polydentate ligands. I'll tell you how we find the coordination number of that particular compound which contains more than which contain ligands other than monodentate. For monodentate ligand, coordination number is the number of monodentate ligands. Number of monodentate और unidentate ligands. जितने भी आपके unidentate ligands यूज हुए हैं, that is the coordination number for monodentate. For example, यहाँ पे coordination number is 6 because there are 6 cyanide and there are 6 cyanide ligands. Correct. Now let me take a few more examples. So for example, this one, मैं इसमें ionic part लिख रही हूँ, सिर्फ anionic part. Here there are 2 cyanide ions, so coordination number is 2. Let me take up any other example. For example, ये वाला coordination compound, इसमें अमोनिया, the ligand कौन सा है, ये वाला part, ये part, this is ligand. So इस कितने ligand है, 4 ammonia molecules. So this is known as coordination number in case of a monodentate ligand. अब आ जाते हैं हम, अब बात करते हैं अपने बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स पे. तो उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है डबल द नंबर ऑफ, फॉर डाइडेंटेट कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, ऑफ डाइडेंटेट. It is the double the number of a didentate ligand. उसकी क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर साइट्स हैं, so that means it is what? It is the, okay, sorry, यहाँ पे मैंने erase कर दिया, number of, so it is the coordination number of a didentate ligand will be what? It will be double the number of डाइडेंटेट लिगेंड. मतलब हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो भी हमारा लिगेंड होता है उसके एक मॉलिक्यूल में
जितनी डोनेशन साइट है, जितने डोनेटिंग आयंस हैं, पार्ट्स हैं, उनको डबल कर देना होता है इन केस ऑफ अभी डाइडेंटेट में। जैसे फॉर एग्जांपल FeC2O4 thrice 2 नेगेटिव, ये एनायन है। दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इट इज अ बाई और डाइडेंटेट लिगेंड है ये, ठीक है। सो दो डोनेशन साइट्स हैं, सो 2 इंटू कितने टोटल नंबर में प्रेजेंट है, 3, तो 6 विल बी दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, और ये हमारा बन जाएगा इस केस ऑफ अ डाइडेंटेट लिगेंड। अब मैंने एग्जांपल लिया था कल टर्डेंटेट का भी, सो लेट मी टेक दैट एग्जांपल आल्सो। सो फॉर एग्जांपल ओके, PTClDIEN, मैंने बताया था जो ये बड़े बड़े लिगेंड्स होते हैं इनके लिए हम एब्रीविएशन, आई एम नॉट एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पेसिफिक लिगेंड DIEN, जिसका शॉर्ट फॉर्म है विच इज N2 अमीनो इथाइल, सॉरी, हाँ यस इट्स राइट N2 अमीनो इथाइल 1,2 इथेन डायमीन, ये हमारा टर्डेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर आयन में Cl भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो ये हमारा मोनोडेंटेट है, ये हमारा टर्डेंटेट है, मतलब इसके एक ही मॉलिक्यूल में 3 डोनेटिंग साइट्स हैं, तो ट्रिपल हो जाएगा इसका, 3 इसका, 1 इसका क्लोरीन का, तो इन टोटल 4, 3 इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 इस वाले का। अगर ये मान लो होता ये डबल, तो क्या करते हम, अगर हम जितने जितने भी प्रेजेंट है तो क्या करते हम, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है बेसिकली। इसके अंदर 3 डोनेटिंग साइट्स हैं, 3 विद इन द सेम मॉलिक्यूल, 3 जैसे टर्डेंटेट लिगेंड, तो अगर यहाँ पे ट्वाइस है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे अकेले इसका। अगर कोई और लिगेंड है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन था, तो टोटल यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया। इफ इट इज DIEN2, से फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 3 बार लगा है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 3 डोनेटिंग साइट्स है, मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर गिव्स दी कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ टर्डेंटेट। ऐसे ही हम निकालते हैं अपने टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, ये सब डेंटिसिटी के बेसिस पे हम निकालते हैं अपने। बेसिकली आपने क्या करना होता है, जितनी डोनेटिंग साइट्स होती हैं, जैसे अगर टेट्राडेंटेट है कोई लिगेंड, इफ इट इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड, और अगर वो एक ही प्रेजेंट है, देन 4 × 1 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर वो 2 प्रेजेंट है तो 4 × 2 8, 3 टाइम्स प्रेजेंट है, 4 × 3 12। जैसे फॉर एग्जांपल TRIEN, अगेन शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ टेट्राडेंटेट लिगेंड, अगर ये 3 टाइम्स है तो क्या करेंगे हम, इसकी एक मॉलिक्यूल में 4 डोनेटिंग पोजीशंस हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। दो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम नहीं करते हैं जितने, जिनमें इतने बड़े बड़े लिगेंड्स लगे हों, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड से, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर इफ द लिगेंड प्रेजेंट इज नॉट मोनोडेंटेट। डाइडेंटेट भी इजी है, डाइडेंटेट में से डबल कर देना आपने, डाइडेंटेट में आपने क्या करना है, डबल कर देना है, लेकिन टर्डेंटेट, टेट्रा और मोर देन दैट डेंसिटी अगर आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि जितनी टाइम्स भी वो आ रहा है उससे उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। हमने अगर ध्यान से देखें हमने यही किया है। देखिए मोनोडेंटेट जो होता है उसकी डेंसिटी 1 होती है, डाई की 2 होती है, टर की 3 होती है, टेट्रा की 4 होती है। तो ये जितने भी ये प्रेजेंट हैं, अगर मान लो 6 प्रेजेंट है ये, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ये कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो 4 से कर दिया। ये मान लो 2 प्रेजेंट है, तो जो जितने भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मान लो 2 प्रेजेंट है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था FeCN6, ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने, इसमें मोनोडेंटेट था, 6 थे ये 6, और डेंसिटी क्या है इसकी, मोनोडेंटेट है 1। अगर किसी एग्जांपल में इथाइलिन डायमीन यूज हुआ है और वो कितना है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, ये डेंसिटी हो गई 2,
मल्टीप्लाइड बाय जितनी ये प्रेजेंट है। इन द सेम वे कोई टर्ड डेंटेड लिगेंड है जैसे डाई ये, एंड इट इज प्रेजेंट अगेन ट्वाइस, तो इसकी डेंटिसिटी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली ट्राई ट्राइन TRIEN इट इज अगेन अ टेट्राडेंटेट लिगेंड, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है 4, और ये मान लो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 2 नंबर में प्रेजेंट है, तो 4 डेंटिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स इट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स गिव्स अस द कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आएंगे जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स होंगे, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया है ये वाला। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, इनको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हमें सभी लीगेंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट करना पड़ता है एंड देन उनको ऐड करना होता है, जैसे मैंने यहां करके बताया 1 + 3 = 4। बट मैं अभी जनरल एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर सपोज एक ही तरह का लीगेंड प्रेजेंट है, इधर एक मोनो है या एक डाई है, एक टर है या एक टेट्रा है, तो हम अकेले अकेले इनकी कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ थर्ड टर्म, नेक्स्ट टर्म दैट वी यूज इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं इसको, and along with that the term uses counter ions. So जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लूडेड होता है, the part that is in square bracket, this part, this is known as coordination sphere, क्योंकि इसी पार्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, इसी में तो लिगेंड्स कोऑर्डिनेट हुए हुए। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड ये जो साथ वाला है, बाहर वाला आयन है, इट मे बी एनाइन, इट मे बी केटाइन, दैट इज नोन एज काउंटर आयन। इस केस में ये एनाइन है। नाउ लेट मी टेक अप अबव एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। इसमें देखेंगे तो दिस इज आर काउंटर आयन विच इज अ केटाइन ओवर हियर, यहाँ पे पोटेशियम है ये। सो दिस इज अ केटाइन, डजंट मैटर इट मे बी केटाइन एंड आयन, बट जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज होता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो नाम जितना बड़ा सा है, द थिंग इज उतना सिंपल कि आपको देख के समझ आ जाता है कि ब्रैकेट वाला पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एंड जो बचे हुए उसके बाहर पार्ट है केटाइनिक या एनाइनिक, व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स केटाइन है या एनाइन है, तो दैट अनदर पार्ट बिकम्स द काउंटर आयन। नेक्स्ट टर्म that we use is coordination polyhedron. Coordination polyhedron, देखिए जब आप आगे जाएंगे इस चैप्टर में तो आप इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इन कॉम्प्लेक्सेस की, जो आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो यानी कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसकी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके पे आप थ्योरीज पढ़ेंगे, बॉन्डिंग की क्या थ्योरीज है, कौन थ्योरी है और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे ये बने हुए हैं, this all you will be studying. So based on that these coordination, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, हमारा जो ये वाला पार्ट है ब्रैकेट वाला, it has a particular geometry. Why? Because जो ligands होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड अपने आप को एक स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट में, एक 3D अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, which gives your coordination complex a particular shape, a particular geometry, and that geometry is known as coordination polyhedron. जैसे कि टेट्राहेड्रल, जैसे कि स्क्वायर प्लेनर, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, पाई पिरामिडल। I mean you have studied this in chemical bonding कि ये जो सारी शेप्स होती हैं ये कैसे आती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके अराउंड कैसे लिगेंड्स अरेंज है। दैट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, which could be any, which could be tetrahedral, वेरी सिंपल। ये आपका मेटल है, सपोज ये लिगेंड है, so this is a tetrahedral, okay, so this is a tetrahedral arrangement, correct. Then we have square planar, so वो भी डिटेल में बाद में स्टडी किया जाएगा इनकी ज्योमेट्री के बारे में। अभी जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो है आपका पर्टिकुलर टर्म जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, उसका क्या मतलब है। ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट। देन वी हैव
ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे होता है, ये स्क्वायर प्लेनर के एडिशन में ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि यहाँ और यहाँ। तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल है, अगेन इट इज अ कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, मैंने कॉमन नेम यूज किया है। इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, PTCl4 2 नेगेटिव, ये आयन, क्योंकि मेन तो इसी पार्ट की शेप है ना, इसी पार्ट की एनायनिक, ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है ये एनायनिक पार्ट जो कॉम्प्लेक्स का है, इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है। देन वी हैव दिस कंपाउंड, ये इसका एनायनिक पार्ट ले रही हूँ मैं बेसिकली, अगर ये ले लेते हैं तो इसके जो ये वाला पार्ट है इसकी शेप है ऑक्टाहेड्रल। देन वी हैव स्क्वायर पिरामिडल, then we have ट्राइगोनल बायपिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसी शेप होती है? स्क्वायर पिरामिडल ऐसी शेप होती है, somewhat like this। दिस इज नोन एज, यहाँ से ऐसे ऐसे 3D शेप होती है, इट कैन नॉट बी इजिली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन अ टू डायमेंशनल थिंग, बट एक आइडिया है कि दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। देन वी हैव ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, सो वो होती है हमारी कुछ ऐसी, करेक्ट। इसमें ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये प्लेन, एक प्लेन में ये होते हैं और ऊपर नीचे ये होते हैं, मतलब एक प्लेन में ये 3 लिगेंड्स होते हैं और ये 2 लिगेंड्स ऊपर नीचे होते हैं। एंड देन ये ऐसे, ये ऐसे, this is joined, it's not joined, I mean I'm just trying to make the shape of it। yes, correct। तो ये दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल एंड दिस शेप को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है? ये होता है हमारे सेंट्रल जो में हमारा मेटल है उसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, इसका होता है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो सेंट्रल मेटल है वो क्या चार्ज कैरी करता है? चार्ज कैरिड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टू कैलकुलेट, क्योंकि नेम लिखते हुए हमें उसका चार्ज मेंशन करना होता है। चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेरी इजी। सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अभी आपका ये पार्ट एनायनिक है, ये पार्ट कैटायनिक है, तो हमें पता है सल्फेट पे जो होता है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट। तो जो हमारा बचा हुआ कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यानी जो स्पीशीज ऑफ कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है हमारा आफ्टर दिस काउंटर आयन, दैट विल कैरी ऑपोजिट चार्ज, बिकॉज ऑन एंड ऑल ये पूरा न्यूट्रल होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस पार्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट बिकम्स दिस। अब इस पे चार्ज निकालने के, आई मीन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या होता है मेथड? वेरी सिंपल, जैसे हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हम निकालते थे कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की। इसकी एक्स मान लीजिए, प्लस ये जो भी आपका लीगेंड है, इस पे जो भी चार्ज होता है ना, अमोनिया इज अ न्यूट्रल लीगेंड, अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लीगेंड है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? इस पे चार्ज होगा 0, ठीक है ना, इस पे चार्ज होगा 0। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, ये टोटल चार्ज यानी कि इसका और इसका चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज कैरिड बाय दी कॉम्प्लेक्स, बाय दी हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज कहां से आता है? वो इन दोनों के चार्ज को मिला के आता है, इज इक्वल टू +2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +2। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। इन द सेम वे K4FeCN6 जैसे, अब यहाँ पे पोटाशियम
बाहर है और हमारा एनाइनिक पार्ट ये है। पोटाशियम के एक आयन पे +1 होता है तो टोटल पे +4 हो गया। इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज कितना है 4 नेगेटिव, इस पे टोटल +4 हो गया, पोटाशियम पे 4 नेगेटिव। अब आयरन का x मान लेते हैं, प्लस साइनाइड आयन, साइनाइड आयन पे -1 चार्ज होता है, तो एक पे -1 तो 6 पे -6 इक्वल टू टोटल चार्ज ये वाला -4। सो x इज इक्वल टू +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है। So this is how we calculate oxidation state. Let me take a few more examples of the same. अभी मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, एक एनाइन ले रही हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा जो एनाइनिक है मैं सीधा वो ले रही हूँ, मैं काउंटर आयन नहीं दिखा रही इसमें, जैसे ये है। अगेन वेरी सिंपल, सिल्वर की निकालनी है, x प्लस कितने हैं ये 2, कितना चार्ज है साइनाइड पे, एक पे -1, so this is equal to how much total charge, which is equal to -1. So x is equal to -2 is equal to -1. This implies x is equal to +1, यानी कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1 है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। So this is how we calculate the coordination oxidation state और oxidation number. चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, ये लेते हैं। अभी x मान लिया इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0। सो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में 0 है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटाशियम ये वाला ले लेते हैं, इसमें मैंने लिया है डाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि मैंने लिया है ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। अब ध्यान से करेंगे इसको, पोटाशियम पे एक पे +1 तो 3 पे कितना हो गया +3, यानी कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पे चार्ज होगा -3, करेक्ट, इस पे होगा -3। आयरन का x +3 इंटू एक ऑक्सिलेट आयन पे कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, है ना, बिकॉज COO नेगेटिव COO नेगेटिव ही होता है, तो -2। दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू -3, सो x क्या आ गया +3, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 3 इस कॉम्प्लेक्स में। चलिए और एग्जांपल ले लें कोई, COCl ये ले लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हैं, 5। अगेन मैं सिर्फ आयनिक पार्ट ले रही हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, दो तरह के लिगेंड्स है, एक क्लोरीन है, एक हमारा है अमोनिया। जो क्लोरीन है यानी कि क्लोराइड आयन है, इस पे होता है -1 चार्ज, अमोनिया न्यूट्रल है, इस पे होता है 0 चार्ज। तो अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, -1 क्लोरीन की है, 0 अमोनिया की है, इंटू 5, दिस इज इक्वल टू +2, so that means x is equal to +3. So cobalt is in 3 oxidation state in this particular compound. तो ऐसे हम निकालते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कुछ एग्जांपल्स कर दिए हैं, कुछ बाद में मैं और प्रैक्टिस करा दूंगी लेटर ऑन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम चार्ज ऑन नंबर, इसको बोलते हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। वेरी सिंपल, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन या चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब बेसिकली चार्ज जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जैसे मैंने अब ऊपर एग्जांपल लिया है कोबाल्ट वाला, यही मैं रिपीट कर रही हूं। सो दिस वैल्यू इज द चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अभी जैसे मैंने पोटाशियम ये लिया था, इसमें मैं अगर निकालूं तो ओवरऑल चार्ज कितना है हमारे कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव। सो दिस वैल्यू 4 नेगेटिव इज नोन एज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, विच इज द सम ऑफ द चार्जेस जो भी अंदर है उनके सबके सम चार्जेस को मिला के ये वैल्यू आती है। अभी देखिए हमने उल्टा किया था, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने इस चार्ज को यूज किया था, अब हम क्या करते हैं इनके चार्जेस को यूज करते हैं ये चार्ज नंबर निकालने के लिए। कैसे, देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी ऊपर निकाली थी 3 है, +3 है,
-1 किसका है, क्लोरीन का पे चार्ज, क्लोराइड आयन पे चार्ज होता है, अमोनिया की 0, तो कितना आ गया +2, यही है +2। इन द सेम वे जो ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड हमने पीछे एग्जांपल लिया था, इसमें हमने कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर हमें पता हो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है आयरन की एंड -6 हो गया साइनाइड के लिए, तो कितना हो गया कॉम्प्लेक्स साइन पे चार्ज, -4। सो दिस इज द सम ऑफ द charges on the metal atom and the ligands. So basically charge number क्या हो गया, sum of charge on metal atom and ligands, सारे ligands जितने भी तरह के ligands है, जितने भी नंबर में, सबका टोटल चार्ज मिला के इज दी चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज, वो मैं कई बार रिपीट पहले भी कर चुकी हूँ, कैटाइनिक, एनाइनिक और नॉट और एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मैंने बताया था, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था निकल टेट्रा कार्बोनिल का, मैंने बताया था अगर आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये सबसे कॉमन एग्जांपल विच आई हैव टेकन सो मेनी टाइम्स, इस पे चार्ज निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव, so this is an anionic complex. Complex part पे आपके क्या चार्ज है, that gives us the type of complex, ठीक है। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे जैसे ये Fe, ये अब ये नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड, तो इस 3 नेगेटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो गया 3 positive, so this is a cationic complex. So based on the what the charge your coordination sphere जो आपका है वो कैरी करता है, that gives us the type of the coordination complex, ठीक है। last term but very important one is the, I mean not that important one in the sense कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे complexes होते हैं and heteroleptic complexes, सी जिसमें सिर्फ एक तरह के लीगेंड, एक ही लीगेंड के चाहे 6 लीगेंड्स हो, वो 7 हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो प्रेजेंट हो, वो होते हैं होमोलेप्टिक। एंड हेट्रो में होता है जब एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये निकल, ये अगेन सेम एग्जांपल, या आपका हो गया ये एग्जांपल, एंड हेट्रो में हमारा हो गया ये, जैसे ये, इसमें सिर्फ एक तरह का कार्बोनिल, इसमें साइनाइड प्रेजेंट है, इसमें 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं, 2 टाइप्स, तो ऐसों को बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और भी कई एग्जांपल्स हैं जो वी विल डू विद टाइम, तो मैंने पहले भी करवाए हैं कई, जैसे ये ले लेते हैं सोडियम, ये देखो इसमें कितने सारे लिगेंड्स हैं, Br, Cl, NO2, एमोनिया, ये सारे हैं हमारे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसमें 1 2 3 4 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है। नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता, टाइप्स ऑफ लिगेंड, दैट इज नोन एज हेट्रोलेप्टिक। तो दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब हमारे पास ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएंगे जिसमें हमारा मेटल एटम सिर्फ एक टाइप ऑफ लिगेंड से बॉन्डेड है, फिर ऐसे आएंगे जिसमें हमारा मेटल एटम कई तरह के लिगेंड से बॉन्डेड है। सो दीज आर नोन एज होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब हम लास्ट टॉपिक में इसमें कराने जा रही हूँ, वो मैं आज का जो मतलब इस वीडियो का है, दैट इज rules for writing the formula of the coordination compound, formula कैसे लिखना, तो हम वो डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। लेट मी चेंज द पेज। सो rules for writing the formula of coordination compound।
जब भी मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी लिखा होगा एग्जांपल, यू मस्ट हैव नोटिस दैट मैंने जो है बहुत ही एक स्पेसिफिक रूल फॉलो किया है while writing the complex. Just a second, मैं अपने वो देख लूं कहाँ पे है मेरे। Just a second. Okay. चलिए रूल्स करते हैं अब फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेट मी ओके। अब आपने देखा होगा जब भी मैंने कोई कोऑर्डिनेशन ये लिखा है, जैसे पूरा कंपाउंड लिखा है, या मैंने इवन एनायनिक पार्ट भी लिखा है या कैटायनिक पार्ट भी लिखा है, सो एक तरीका है लिखने का, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए, कहीं पे मैंने पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है। फिर मैंने कहीं पे ये जो आयनिक्स जो हमारा स्फीयर है, ये वाला जो ये काउंटर स्फीयर, जो काउंटर आयन है, इसको नॉट स्फीयर, काउंटर आयन, इसको मैंने कहीं यहाँ लिखा है, कहीं पीछे लिखा है। अगर आप देखें पोटेशियम को आगे लिखा है, क्लोराइड को पीछे लिखा है मैंने इस केस में, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाए हैं, स्क्वायर एंड स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए हैं। या देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए Cl को पहले लिखा है, अमोनिया को बाद में लिखा है, ऐसा क्यों? इन द सेम वे ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा ये वाला, इसमें मैंने पहले प्लैटिनम, पहले मेटल एटम लिखा, फिर मैंने ब्रोमीन, फिर Cl, फिर ये लिखा, इन द सेम वे यहाँ पे ऐसे। सो ये क्या है कि हम ऐसे लिखते हैं। सो ये कैसे आपको याद रहेगा? सो यू विल हैव टू follow certain rules for writing the formula of a coordination compound. So first जो rule है that is, सबसे पहले हम कैटायनिक पार्ट लिखते हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एंड फिर एनायनिक पार्ट लिखते हैं। सो कैटायनिक पार्ट, अब ये कैटायनिक पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो या ना हो, पहले लिखा जाएगा कैटायनिक पार्ट फर्स्ट एंड एनायनिक पार्ट सेकंड। अगेन मैं एग्जांपल के साथ, हाँ ऐसा भी होगा कि हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल है, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल वाला, तो यहाँ पे तो कोई कैटायनिक एनायनिक पार्ट नहीं है, तो उसके जो रूल्स हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे मोस्टली कंपाउंड्स होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे जिसमें वी हैव कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक पार्ट। सो कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट सी K4 FeCN6, दिस इज योर कैटायन, और इसमें आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो एनायन है, पहले इसको लिखा जाता है, ठीक है। और मैंने कोई एग्जांपल लिया हो, हाँ ये देखिए FeH2O6 ये वाला लिया था ना मैंने, इसको मैं रिपीट करती हूँ। इसमें अगर देखेंगे हम तो इसमें हमारा ये क्या है, ये हमारा कैटायन है। अब यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है और हमारा जो काउंटर आयन है वो हमारा एनायन है। सो बाय रूल what do we do, we write the cationic part first and the anionic part next। ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये देखिए सोडियम इसमें हमारा कैटायन था, तो ये हमने पहले लिखा, और ये पूरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, बचे हुए पे -1 चार्ज होगा हमारे इस पे, तो ये हमारा एनायनिक पार्ट बाद में लिखा जाता है। ये तो एक सिंपल बेसिक रूल है फॉर्मूला लिखते हुए, फर्स्ट बेसिक रूल कि यू हैव टू राइट कैटायनिक पार्ट फर्स्ट एंड एनायनिक पार्ट बाद में। सेकंड है कि कोऑर्डिनेशन जो पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो हमारा, बेसिकली उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्फीयर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। वो आपने देखा मैंने हर जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करी है, अब तक जितनी बार भी मैंने यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, ये जो ये हमारी एंटिटी है ये वाली, इसमें हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सो इसके लिए सीक्वेंस टू बी followed in the coordination sphere, इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। सो इसमें सीक्वेंस सबसे बड़ी बात है,
फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल लिखा जाता है. फर्स्ट इज मेटल एटम. अच्छा, लीगेंड्स मैंने अब तक जितने भी कराए हैं, मैंने एनाइनिक को न्यूट्रल कराए हैं, बिकॉज कैटाइनिक हार्डली देयर आर एनी कैटाइनिक लीगेंड्स. बट इफ प्रेजेंट, ठीक है, इफ प्रेजेंट, इन केस इफ कैटाइनिक लीगेंड प्रेजेंट, तो उसको भी लिखने का रूल है. कहाँ लिखना है? सबसे पहले आप लिखते हैं मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर आप लिखते हैं एनाइनिक लीगेंड. अगर आपके डिफरेंट, अगर आपका कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है. देखिए, अगर होमोलिप्टिक है फिर तो मेटल एटम लिखा और लीगेंड लिखा. मैं एक बार इसको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे. देखो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे? मेटल एटम, और एक ही तरह का लीगेंड है हमारा, तो पहले मेटल एटम लिखा जाएगा, फिर आपका लीगेंड लिखा जाएगा. वो कैटाइनिक होगा, एनाइनिक होगा, न्यूट्रल होगा, डजंट मैटर, क्योंकि वो एक ही तरह का है, वो मेटल एटम के बाद में आएगा. अब बात करते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की. इस केस में प्रॉपर ऑर्डर है. इसमें आपका लीगेंड एनाइनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एंड फ्यू केसेस में कैटाइनिक भी हो सकता है. वेरी फ्यू केसेस में कैटाइनिक भी हो सकता है. सो हेट्रोलेप्टिक में क्या ऑर्डर होगा? अगेन मेटल एटम पहले, देन आप लिखते हैं एनाइनिक लीगेंड को, देन आप लिखते हैं न्यूट्रल लीगेंड को, एंड लास्ट में अगर कोई कैटाइनिक लीगेंड हो तो वो लिखा जाता है. अब मैं आपको एग्जांपल के साथ फिर से समझा देती हूँ, जैसे मैंने पीछे यूज किए, मैं उन्हीं एग्जांपल्स को लूंगी. पीट ये वाला, ओ आई गेस यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हुई है, बिकॉज ये जो है ना, मैंने गलत लिखा है. जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक दिस एग्जांपल अगेन. एग्जांपल मैंने कहाँ से लिया है? पीटी, इसमें तो मैंने गलत ऑर्डर लिखा हुआ है, मैंने न्यूट्रल को पहले लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स मैंने इस एग्जांपल को गलत उठाया है. लेट मी चेक फ्रॉम वेयर हैव आई टेकन दिस एग्जांपल. ओके, आई थिंक सो ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल नहीं है. सो लेट अस लीव दिस एग्जांपल फॉर अ व्हाइल, क्योंकि इसमें हमने न्यूट्रल को पहले लिखा है. हम ये वाला फॉलो करते हैं, हमें कोई और मैंने जो पहले लिखे हो. लेट मी टेक अप दोस. ये देखिए, ये वाला लेते हैं, COCl, ये वाला लेते हैं, बिकॉज देर इज अ रूल टू राइट द फॉर्मूला. तो कौन सा एग्जाम्पल लेना है हमें इसमें? COCl, क्या था एग्जाम्पल? ये वाला. इसमें हमारा मेटल एटम आया पहले, मेटल, फिर हमारा आया एनाइनिक लीगेंड, फिर आया हमारा न्यूट्रल लीगेंड. ठीक है, और कोई प्रीवियस एग्जांपल लिया हो मैंने हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का, वहीं से उठा लेती हूँ. ओके, याद नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आई टेक अप सम एग्जांपल्स फ्रॉम बुक. यही एग्जांपल ले लो जो मैंने अभी लिखा था. ये वाला एग्जांपल था. ओके 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 ओके, दिस वाज NaPtBrCl NO2 अमोनिया. देखो, मेटल, ये एनाइनिक, एंड ये हमारा न्यूट्रल लीगेंड. सो ऐसे ही फॉलो होगा ऑर्डर, कि अगर आप जो है लिख रहे हैं, जब आपका एनाइनिक लीगेंड सबसे पहले लिखा जाएगा, न्यूट्रल लीगेंड बाद में. और जो एग्जांपल मैंने पीछे गलत दिया था, आई चेक दिस
विद अ बुक एंड देन आई कंफर्म कि उसमें क्या क्यों आगे पीछे लिखा है या मैंने कॉम्प्लेक्स से गलत यूज किया है. सो दिस इज एन एग्जांपल विच शोज कि हम एनायनिक को पहले लिखते हैं, न्यूट्रल को बाद में लिखते हैं, कैटायनिक को लास्ट में. यहाँ पे कैटायनिक नहीं है. अब इंपॉर्टेंट चीज एक और है इसमें, अगर आपके पास मोर देन वन एनायनिक या न्यूट्रल या कैटायनिक कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो तो आप कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ये एग्जांपल में मैंने पहले Br लिखा है, फिर Cl लिखा है. ठीक है, फिर मैंने अब नाइट्रो लिखा है, फिर मैंने अमोनिया लिखा है. ठीक है, अमोनिया बाद में आया, वो तो रीजन है न्यूट्रल है, लेकिन ये तीनों एनायनिक में मैंने BrClNO2 ये ऑर्डर क्यों फॉलो किया है. ठीक है, सो इफ देयर आर मोर देन one type of anionic ligands are present. कैसे लिखते हैं उनको, they are written alphabetically. They are written in alphabetical order. Order कैसे, according to first symbol, according to first, not symbol, letter of their symbol. And same thing is followed for neutral, same for neutral and cationic ligands and cationic ligands, सेम रूल फॉलो होता है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, सोडियम PtBrClNO2 अमोनिया. ठीक है, इसमें BrCl नाइट्रो, ये कैसे अरेंज है, अल्फाबेटिकल. B पहले आता है, C बाद में, N बाद में. Alphabetical order has been followed. Now same is the case with another one. एक एग्जांपल और ले लेते हैं, H2O2 Cl3. ये वाटर है, आई मीन एक्वा इसको बोलते हैं, इसका नाम एक्वा यूज होता है. ये H2O है और NH3 है. तो ये कैसे अरेंज है, पहले H2O को क्यों लिखा है, अगेन बिकॉज alphabetical order has been followed. दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, both are neutral ligands, but they are written in such a way that alphabetically H पहले आता है, N बाद में आता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है. ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने देख भी लिया है कि पॉलीएटॉमिक लिगेंड is written in parenthesis in small bracket. Polyatomic ligands are written in parenthesis, that is small bracket. यानी कि जैसे मैंने अभी पीछे लिखा था, ये COH2O6 not 6 twice NH3 4 Cl3, ये मैंने कैसे लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखे हैं, ये ब्रैकेट्स में लिखे हैं, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट्स में लिखे हैं. ठीक है, एंड लास्ट रूल है कि अगर आप पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहे हैं, कैटायनिक पार्ट एज वेल एज एनायनिक पार्ट, ओवरऑल चार्ज oh god, what is happening, charge on compound is equal to OMG, this thing just broke, just a second. मेरा पेन ब्रेक हो गया है, तो आई कांट राइट नाउ, माय टिप हैज ब्रोकन, तो मैं लिख नहीं रही हूँ ये चीज यहाँ पे अभी. मैं राइट नाउ नॉट राइटिंग इट, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट
कि ओवरऑल चार्ज जो है कंपाउंड पे वो जीरो होता है, overall charge on zero होता है on the whole compound. You can see in various examples that I have given, because charge on cation plus charge on anion is equal to zero. आपके पूरे coordination compound में cationic charge plus anionic charge zero होना चाहिए. So these are some rules that we follow while writing the formula of a coordination compound. So next time I will be telling up the rules to write the name of the compound, coordination compound. उसको कैसे नाम हम कैसे लिख देते हैं IUPAC nomenclature के according. So by that time you just go through the complete video and practice what I have taught today, like how to write the formulas and the terms that we use in coordination compounds.